Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the e-governance, right? We were studying the issues for e-governance in last lecture. What was the first issue? The issue which government all over the world are trying to utilize IT for various purpose, right? E-government application bring governments into more than efficiency and effective government in delivery of service and internal administration and communication. This brings culture change both within the government itself and in the overall society. Increased links by government and the citizen alike to international website, new groups, chat rooms, email communication, building of international network to the use of email and the powerful wireless technologies all contribute to an emerging link world that operates continuously. We must admit the great potential of new technology for enhancing democracy without supposing either this is yet happening or it will necessarily happen without a lot of sustained effort. There are very considerable opportunities, but so too are this risk. Those who those can most effectively be minimized if we first open our eyes to both the benefits of the potential cost of the change in the culture of democracy that the new technologies are bringing about and are likely to continue to bring about. Then, according to Gratner, e-governance will mature according to the following four phases, that is information, interaction, transaction and transformation. Then government is itself a process or a means to an end rather than end in and of itself. E-government is still in the earliest stage of development and promises to involve the advances in technology and increased acceptance and truth in electronic communication. Although the full transformative effects of e-government remains largely unrealized at this time. The rapid growth in interest and resources dedicated to e-government initiative may contribute to stiffer changes. A set of motivation may come from need to provide various social service to citizens for improving the quality of life of the citizen. A parallel set of motivation may be to strengthen the democratic foundations of governance. Government grows up exponentially once e-governance is introduced. This is because the ease of transaction introduced by e-governance would encourage citizens and businesses to have more transaction with the government. In order to manage this enormous amount of data such that system perform does not get degraded and such that system is scalable, there is a need to automate the record management function. Although there exists solution for document archival system based on network centric groupware, but they do not address the issue of archival based on multiple policies. Then many governments are struggling with massive internal re-engineering in relation to technology to improve efficiency and deliver government services electronically to citizens. Economic benefit accruing to government from technology integration have historically been viewed in terms of cost saving and return on investment from specific project. The effective use of technology is therefore key for successful deployment of electronic governances. Accordingly, critical issues need to be clearly delineated and solution worked out. Whatever may be the middleware chosen, the system should be highly reliable, must have capacity for future expansion, must be able to be managed with easy, must have high performance, but above all should have very good security in transaction. Then vendors of typical middleware like IONA, VEA, etc. provide these services. See, the infrastructure needs and issues of e-governance cannot be generalized. Then we move towards the public-private partnership.
increasing pace of industrialization, urbanization and population growth placed enormous burden over the governments all over the world. So अब क्या है, हर कोई कंट्री फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रही थी. सो दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप केम अप. इट वॉज दिस कंसेप्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम, राइट. और फिर बाद में ये ऑस्ट्रेलिया में इसका यूज़ हुआ था. नाउ विल मूव टूवर्ड्स द मीनिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप is the joint venture of government and private businesses operated through their mutual partnership. See, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, ये एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट का एंड प्राइवेट बिजनेस ऑपरेटर का. और ये दोनों कैसे, विद द म्यूचुअल पार्टनरशिप पे वो लोग काम कर रहे हैं. इट इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी एंड अ प्राइवेट पार्टी इन विच द private party provides a public service or project and shoulders a sustainable financial, technical and operational risk in the project. See, अब क्या है, it involves a contract between. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है contract है. The contract is between the public sector authority and private parties, right? In which, और इसमें क्या है, private party पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिस्क इन द प्रोजेक्ट. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड बिटवीन बोथ गवर्नमेंटल साइड एंड प्राइवेट साइड, वी कैन कैटेगराइज द टाइप्स ऑफ PPPs. सी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. अभी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, हाँ, एंड कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने उठाई है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट साइड ने उठाई है, इसके ऊपर से वी कैन क्लासीफाई द PPP. ऑन दैट बेसिस वी विल क्लासीफाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. In some types of PPP, the cost of using the service is borne exclusively by the user of the service and not by the taxpayer. See, in some types of PPP क्या है, the cost of using the service. अभी जो भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हो ये किस पे जाएगा, ये यूज़र के ऊपर जाएगा, राइट. जो टैक्स पे कर रहा है उसके ऊपर नहीं जाएगा. लाइक सपोज गाड़ी मेरे नाम पे है तो टैक्स मैं पे करूँगी ऑब्वियसली, बट क्या है, और जो भी गाड़ी का सर्विसिंग का कॉस्ट है आई विल बेयर इट, राइट. अभी मैंने गाड़ी बेच दी, तो गाड़ी कौन यूज़ कर रहा है, जो यूज़ कर रहा है ही विल पे द सर्विस चार्जेस एंड एग्जीक्यूटिवली, नॉट मी द टैक्स पेयर. ओके. देन इन अदर टाइप, कैपिटल इन्वेस्टमेंट is made by the private sector on the strength of contract with government to provide accurate service, and the cost of providing the service is borne wholly or in part by the government. See, in other type क्या है, capital investment. It is made by the private sector. Capital investment कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर करता है. क्यों, ताकि वो अच्छे से काम करे. और प्राइवेट सेक्टर को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने में कौन हेल्प करता है, गवर्नमेंट हेल्प करती है. एंड इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, और कुछ सर्विसेज ये देंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज को थोड़ा सा या फिर कम्प्लीटली इट इज़ ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन काइंड, गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा बोल के भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है. इन प्रोजेक्ट that are aimed at creating public goods, like in the infrastructure sector, the government may provide a capital subsidy in the form of a one-thing grant so as to make it more attractive to the private investor. See, in project that are aimed at creating public goods. See, कुछ प्रोजेक्ट ऐसा रहता है जिसका एम क्या रहता है, लाइक पब्लिक के लिए कुछ तो करना. अभी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी क्या, बिल्डिंग रोड्स, डैम्स, फिर रास्ते अच्छे सुधारने का, ये सब कैसे चलता है. अभी गवर्नमेंट क्या करता है, इनको मे प्रोवाइड अ कैपिटल सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ वन टाइम ग्रांट सो एज टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव टू द प्राइवेट इन्वेस्टर. गवर्नमेंट बोलेंगे मैं तेरे को इतना इतना देता हूँ तो मुझे ये काम, ये प्रोजेक्ट पूरा करके दे. जैसे अभी देखो ये अपना फ्लाईओवर बनाने का काम वगैरह सब ये कौन करता है, गवर्नमेंट करता है. बट क्या है, टेंडर ओपन करते हैं ना प्राइवेट सेक्टर के लिए,
प्राइवेट सेक्टर सब अपने अपने टेंडर भरते हैं और जिसका टेंडर अच्छा रहता है, लो रहता है, दे गेट द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या है, गवर्नमेंट के अंदर प्राइवेट ओनरशिप ने ये सारा काम करने लिया है। In some cases, the government may support the project by providing revenue subsidies, including tax break, or by providing guaranteed annual revenue for the fixed period. See, in some cases, कुछ केसेस में क्या बोल रहा है, the government may support the project. कुछ केसेस में the government can support the project by providing revenue subsidies, including tax break, और by providing guaranteed annual revenue for the fixed period. गवर्नमेंट क्या बोलती है, मैं तुमको पूरा टैक्स वैक्स कम करता हूँ, बट तुम मेरे को इतने टाइम में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देने का, राइट, आई विल गिव यू दिस मच अमाउंट, और इतना आपको मैं टैक्स से छुटकारा देता हूँ, आप पे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दो। इस तरह से भी कुछ केसेस में हो सकता है। टिपिकली अ प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम फॉर्म्स अ स्पेशल कंपनी called a special purpose vehicle to develop, build, maintain and operate the asset for the contracted people. So typically क्या है, उस तरह से प्राइवेट सेक्टर भी क्या काम करता है, they work on some special purpose vehicle कुछ SPY बोल रहा है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्या बोल रहा है, SPY पे कर रहा है, दैट इज़ टू डेवलप, बिल्ड, मेंटेन एंड ऑपरेट द एसेट फॉर द कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड। In cases where the government has invested in the project, it is typically allotted on equity shares in the SPYC. इन केसेस क्या है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया इन द प्रोजेक्ट में, उसमें क्या है, इट हैज़ अलॉटेड अ इक्विटी शेयर्स इन द PSPY. The consortium is usually made up of building contractor. अब ये सब किस पे बेसिस पे चलता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्टर रहता है जो सारा काम करता है, वो मेंटेनिंग कंपनी एंड बैंक लेंडर्स ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे देते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर सारा काम मेंटेन करता है। इट इज़ द SPY दैट साइंस द कॉन्ट्रैक्ट विथ द गवर्नमेंट एंड विथ कॉन्ट्रैक्टर टू बिल्ड द फैसिलिटी एंड देन मेंटेन इट। सी, इट इज़ क्या है, SPY ये क्या करता है, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और सब कॉन्ट्रैक्टर भी रहते हैं जो बिल्डर द फैसिलिटी एंड देन मेंटेन इट। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। टू अंडरस्टैंड द PP कंसेप्ट वी मस्ट नो इट्स फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। सी, अगर आपको PP कंसेप्ट समझना है तो सबसे पहले आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानने होंगे। सम ऑफ दिस आर डिस्कस्ड इन डिटेल्ड बिलो, कुछ उन्होंने डिस्कस किए हैं। सर्विस ओरिएंटेड, द PP अप्रोच डील्स विद द फैसिलिटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म बिजनेस सर्विस। ये जो PP अप्रोच है, व्हाट इट डज, इट डील्स विद द फैसिलिटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म पब्लिक सर्विस। इट इंक्लूड्स roads for transportation, dams for electricity and water supply and street lights for lightning. See, the PPP approach क्या है, it deals with the long term public service. ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म सर्विस का ध्यान रखता है। अब लॉन्ग टर्म सर्विस में क्या आता है, लॉन्ग टर्म सर्विस में क्या है, यू आर सपोज टू बिल्ड द रोड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अभी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको प्रॉपर रास्ते तो चाहिए ना। आज अपने यहाँ पे सारे रोड्स इतने डेवलप हो गए, इनफैक्ट जो छोटे छोटे गांव हैं इवन दे आर कनेक्टेड विथ रोड्स एंड ऑल। पहले क्या थे, छोटे छोटे गांव क्या है, रोड से कनेक्टेड नहीं थे, बट नाउ द रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, डैम्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स बनाए जाते हैं सो दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई एंड स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर लाइटनिंग। प्रॉपर वाटर सप्लाई भी तो होना चाहिए, अगर प्रॉपर वाटर सप्लाई रहेगा तभी तो सारे काम अच्छे से होंगे। देन स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर लाइटनिंग्स। सी, फॉर स्ट्रीट लाइट्स चाहिए। देखो, अगर स्ट्रीट लाइट कभी जल्दी नहीं लगती है तो आपके सोसाइटी में कितना अंधेरा रहता है, फिर आप बोलते भी हो ना, अरे आज स्ट्रीट लाइट नहीं लगी, रास्ते पे बहुत अंधेरा है, आज इस लेन में बहुत अंधेरा है, आज सोसाइटी की लाइट नहीं लगी, बहुत अंधेरा है, आप बोलते हो ना। सो सी, सर्विस ओरिएंटेड में स्ट्रीट लाइटनिंग, लाइट्स फॉर लाइटनिंग भी आते हैं। देन whole life costing. In the PPP model, the project's total cost is computed at once for its entire lifespan. See, in the PP model क्या है, the project's total cost, प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट कैसे होता है, एक
ये ज़िंदगी भर का कैलकुलेट किया जाता है, एक टाइम में देख के पूरा काम करो अभी तुमको। दस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस एंड द इवेंचुअली डिस्पोजिशन कॉस्ट। सी इन द पीपीपी मॉडल क्या बोल रहे हैं, द प्रोजेक्ट्स टोटल कॉस्ट, प्रोजेक्ट का जो भी टोटल कॉस्ट क्या है, इट इज़ कॉम्प्यूटेड एट वंस फॉर द एंटायर लाइफ स्पैन, पूरी ज़िंदगी भर के लिए देखा जाता है। अभी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर, सी आपको क्या कर देखना है, यहाँ पे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर देखना है, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देखना है एंड मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस एंड द इवेंचुअली डिस्पोजिशन कॉस्ट। Innovation. With the involvement of the private firm, the PP approach also initiates the implications of creative and new technology to the infrastructure process. See, innovation में क्या बोला है, with the involvement of the private firm. अभी जैसे जैसे प्राइवेट फर्म आ गए हैं तो पीपी अप्रोच क्या है, इट इज़ टेकिंग एन क्रिएटिव एंड न्यू टेक्नोलॉजी टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। Participants. The two parties involved in the public-private alliance are the government and the respective private companies. See, अभी the two parties involved in public-private alliance क्या है, अभी दो parties क्या है यहाँ पे, एक तो गवर्नमेंट है और सेकेंड है प्राइवेट कंपनीज, दोनों प्राइवेट पब्लिक अलायंस करके यहाँ पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द रिस्क allocation. Infrastructure project involves high risk, thus PP helps the government to transfer this risk to private firm. See, infrastructure projects क्या है, it involves high risk. अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या है, बहुत बड़ा रिस्क रहता है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों मिलके क्या करते हैं, रिस्क उठाते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं। सो दिस PPP helps the government to transfer this risk to the private firm. Long-term relationship. These projects are usually for years. Therefore, the government authority and the private entity remains associated for an extended period. See, this project क्या है, these projects are usually for years. अभी लॉन्ग टर्म रिलेशन क्यों बोला है, अभी कोई प्रोजेक्ट दोनों मिलके करते हैं तो ये प्रोजेक्ट क्या जाता है, बहुत लंबे समय तक जाता है। Therefore क्या है, द गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड प्राइवेट एंटिटी रिमेन्स एसोसिएटेड, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। देन रिसोर्स शेयरिंग. द कैपिटल, फाइनेंशियल डिज़ाइन एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड आर शेयर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट and the firm for successful project accomplished. See, the capital, financial, designs and other resources required, this all are shared between the government and the firm. तभी project complete हो सकता है, पूरा हो सकता है. Then types of public private partnership. When we talk about the private public partnership, we come across various way in this approach function. To understand some of the frequent adopted PPP structure, read below. Build, operate, transfer. We'll move towards the second. Build, own, operator. It is through very similar to the BOT model. Here the possession of the facility remains with the private entity itself. See, बिल्ड ओन ऑपरेटर यानी क्या, यहाँ पे जो भी पोजीशन है वो सिर्फ प्राइवेट के पास ही रहता है. बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफ़र. टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इनकर गेन्स, द प्राइवेट फर्म आफ्टर डेवलपमेंट कीप्स द पोजीशन ऑफ द फैसिलिटी अप टू द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. सी, अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से सारा काम हो गया है तो भी क्या करता है, ये प्राइवेट फर्म ओनरशिप उनके पास ही रखते हैं जब तक उनका वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म नहीं होता. आफ्टर विच इट पासेस ऑन द ओनरशिप टू द पब्लिक सेक्टर. उसके बाद से वो अपना ओनरशिप पब्लिक सेक्टर को दे देते हैं. देन बिल्ड, लीज, ऑपरेट, ट्रांसफर. द प्राइवेट कंपनी uses a leased public property to develop a facility. It functions on this property for the lease period to recover cost and earn revenue. See, the private company uses as a leased public property to develop a facility. और उनका फंक्शन क्या है,
इस टू तो क्या है, लीज पीरियड तक सारा कॉस्ट, सारा रेवेन्यू अर्न करना, रिकवर करना और प्रॉफिट अर्न करना. लेटर एज द लीज एक्सपायर द लैंड इज हैंडेड ओवर बैक टू द गवर्नमेंट. सी बाद में क्या है, जैसे ही लीज ख़त्म होता है वो लैंड गवर्नमेंट को दे दिया जाता है. सी बहुत से घर है ना, कुछ एरियाज अभी भी ऐसे है कि लीज पे है वो, लाइक 100 साल का लीज लिया हुआ है, 100 साल के बाद वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं बाबा. बट 100 साल होने के बाद गवर्नमेंट डजंट टेक दैट, वो जो रहते हैं उनकी हो जाती है बाद में. डिज़ाइन बिल्ड. This is the basic form of P3 where the private company layouts and construct the facility as per the government requirement after complete risk assessment. See, this is the basic form of P3 जहाँ पे private company layout and construct the facility as per government required after complete risk assessment. In return, it takes a fixed amount as it charges. Design build finance. The private sector firm undertakes a project to design the layout. See, यहाँ क्या है, ये जो प्राइवेट सेक्टर है, they undertake the design project design, proper layout and build the facility and meet the capital cost involved in such designing and construction. Design build finance operator. In the DBFO model, the private company is responsible for planning the project layout, facilitate construction, arranging the required capital and operating it till the grant period. See, in the design build finance model में क्या है, यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी है वो सब कुछ देखती है, लाइक प्लान करने का, प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने का, अरेंज करने का सारा, फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करने का, और वो जो भी ऑपरेशंस है उस पीरियड तक के वो सारी प्राइवेट कंपनी लेगी. The facility operation revenue meets the cost incurred and generates profit to the company. See, the facility operation revenue क्या है, it meets the cost incurred and generates the profit to the company. Design build finance maintain. This model can also be termed as a management contract. See, this model क्या है, it can be termed as a management contract. Here the public sector entity remains associated with the project from the beginning to the end. See, यहाँ पे क्या है, ये जो पब्लिक सेक्टर है it remains associated. पब्लिक सेक्टर क्या है, जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है एंड तक पब्लिक सेक्टर इससे जुड़ी हुई रहती है. The process starts right from designing the layout to construction, funding and lifetime maintenance of the facility. अब ये कब से स्टार्ट होता है उनका काम, जब से ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता है तब से, फिर कंस्ट्रक्शन होता है, फिर फंडिंग होता है और लाइफ टाइम मेंटेनेंस फैसिलिटी भी इनके पास ही होता है. द फर्म ईदर चेंजेस अ फिक्स सम और शेयर्स प्रॉफिट, ऑल्सो इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट मैनेजर डिसीजन मेकिंग. सी, द फर्म क्या है, आइदर इट चेंजेस अ फिक्स सम और शेयर प्रॉफिट. अभी यहाँ पे फर्म क्या है, या तो एक फिक्स्ड अमाउंट शेयर करते, एक फिक्स्ड अमाउंट दे देते हैं, या फिर कुछ प्रॉफिट शेयर करते हैं जो भी उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, और फिर मैनेजरल डिसीजन में भी उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है. डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस मेंटेन ऑपरेशन ऑपरेट्स. सी, इट इज़ एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ DBFO. Here the private firm prepare the blueprint, builds up the facility, invests the required sum and carries out the operation to generate revenue. See, it is extended version of the DBFO. यहाँ पे जो प्राइवेट फर्म क्या करती है, यहाँ पे वो ब्लूप्रिंट वगैरह निकालती है, फैसिलिटीज़ क्या दे सकते हैं वो देखती है, एंड इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड सम, और जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है उतना इन्वेस्ट करती है, और उस हिसाब से दे कैरी आउट द ऑपरेशन टू जनरेट रेवेन्यू. सिंस द कंपनी अंडरटेक्स द प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म, इट हैज़ टू टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस वर्क टू. सी, यहाँ पे क्या है, सिंस द कंपनी अंडरटेक्स द प्रोजेक्ट, ये कंपनी क्या करती है, प्रोजेक्ट लेती है कंपनी, दिस कंपनी अंडरटेक्स द प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म, तो वो मेंटेनेंस का भी यहाँ पे ध्यान रखती है. डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट मेंटेनेंस फाइनेंस. In the DCMF model, the private entity understands the government specifications and accordingly designs, develops, upkeeps and invests in a facility. See,
द DCMF मॉडल क्या है? ये जो प्राइवेट एंटिटी है, इट अंडरस्टैंड्स द गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशन और उस हिसाब से वो डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है और इन्वेस्ट करती है. दिस फैसिलिटी इज़ देन लीज्ड आउट टू द गवर्नमेंट बॉडी इटसेल्फ. फिर ये फैसिलिटी क्या करते हैं? वो लीज पे दे देती है गवर्नमेंट. देन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. दिस मॉडल इन्वॉल्व्स assigning of a subcontract to the private companies for running and upkeeping of facility. See, अब ये मॉडल क्या है? This model involves assigning of subcontract. अभी सब कॉन्ट्रैक्ट देती है प्राइवेट कंपनीज को ताकि आप ये चलाओ और आप आपका ये मेंटेन करो. द फर्म विच अंडरटेक्स सच प्रोजेक्ट्स आर एक्सपर्ट इन मेंटेनेंस वर्क. जो ये फर्म जिसको भी ये देते हैं चलाने को, वो क्या रहते हैं? दे आर ऑल एक्सपर्ट इन दिस मेंटेनेंस वर्क. Also, the possession of the facility remains with the government body. Also क्या है? ये जो possession of the facility क्या है? Even it remains with the government body. The revenue for private entities is commonly generated through a performance based fees. See, अब ये revenue for private entities कैसे generate होती है? To the performance based fee. In some cases, the company charges a lump sum एंड फिक्स्ड प्राइस फॉर देयर सर्विसेज. कुछ केसेस में क्या करती है कंपनीज? क्या है? एक साथ अमाउंट ले लेती है या फिर फिक्स्ड प्राइस रखती है उनके सर्विस के लिए. विल वाइंड अप आवर लेक्चर हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडिया. ये कंप्लीट करेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID. माई मेल ID इज rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.